Good morning students. I'm Nigesh Saksak, your maths teacher. Today we will discuss the topic circles, chapter number 10. First of all, we will discuss learning objectives, circle and its related terms, angles subtended by a chord at a point and circles through 3 points, angles subtended by an arc of a circle and cyclic quadrilateral. Okay. First of all, we will discuss circle. A circle is the locus of a point which moves in a plane such that it remains at a constant distance from a fixed point in the plane. A circle is the locus of a point in which moves in a plane such that it remains at a constant distance from a fixed point. This is the fixed point and this is the constant distance, and this is called, OP is called radius. Constant distance is known radius. Okay. अब ध्यान से देखो, a circle is the locus of a point which moves in a plane. It remains at a constant distance from a fixed point. OP. OP क्या है? Radius. Okay. एंड यहाँ देखिए, ये कांस्टेंट डिस्टेंस, ये भी कांस्टेंट डिस्टेंस, इन पॉइंट से मिलकर ये जो पाथ है इसे क्या बोलेंगे? सर्कल. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज, एंड सर्कल जो है, a circle is a closed curve. It divides the plane region into 3 parts. देखिए 3 parts कैसे? फर्स्ट इंटीरियर, ठीक है, सेकंड क्या है? सर्कल, एंड थर्ड एक्सटीरियर. सर्कल क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स P ऑफ द प्लेन सच दैट OP इक्वल्स टू R. OP क्या है? R. ये कलेक्शन जो है पॉइंट्स का कलेक्शन, ध्यान से देखना, पॉइंट्स हैं आपके, इनका जो कलेक्शन है ये कंप्लीट क्या होगा? सर्कल. ओके. एंड इंटीरियर, एक वर्ड आता है इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ ए सर्कल, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द प्लेन विच लाई इनसाइड द सर्कल. एक पॉइंट है E, कहाँ लाई कर रहा है? इनसाइड द सर्कल. ओके. द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द प्लेन विच लाई इनसाइड द सर्कल, पॉइंट P, इंटीरियर. एंड थर्ड एक्सटीरियर, एक्सटीरियर. एंड हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, पॉइंट यह मैंने लिया A, OA, OA less than R, the point is interior. Okay. Exterior of a circle, the collection of all points of the plane which lie outside the circle. कोई पॉइंट है Q, OQ, OQ is greater than R. कोई भी पॉइंट या फिर डिस्टेंस, ये क्या है? OP भी क्या है? एक लाइन सेगमेंट है. कोई भी लाइन सेगमेंट अगर रेडियस से बड़ा है, if it is greater than radius, then the point lies outside the circle. Okay, and this is known as exterior. Next point is chord of a circle, a line segment joining any 2 points of a circle. सर्कल पे कोई भी 2 पॉइंट, any 2 points, अगर आप उन्हें ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा? कोड. पॉइंट्स कहाँ होने चाहिए? सर्कल पर, ऑन द सर्कल. PQ is also a chord. Okay. Next point is diameter. Diameter, a chord of a circle which passes through its center. This is center. And क्या कहा है? A chord which passes through the center. Then it's known as
डायमीटर, डायमीटर ऑफ द सर्कल। कोड ये भी हो सकती है, जो सिर्फ सर्कल से सॉरी सेंटर से पास हो कोड, वो क्या होंगे, डायमीटर। ये पॉइंट दिया मैंने ई एफ, ओके। एंड जितने भी आप सेंटर से पास कराओगे लाइंस या फिर कोड, वो सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे। डायमीटर क्या होगा, इक्वल होगा, ओके। नेक्स्ट टर्म इज सेकेंड। सेकेंड, a line which intersect a circle in 2 points. A line which intersect 2 points. PQ is a secant. सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, उस लाइन को आप क्या कहेंगे, सेकेंट। इस डायग्राम में क्या देखा हमने, इन दिस फिगर a line segment joining the 2 points of a circle, okay. This is called chord. And a line which intersects 2 points, a line which intersects a circle in 2 points, then this is called as secant. Next point is minor and major arc, okay. An arc, first of all arc, a part of a circle is called arc of the circle. PQ क्या है, arc, okay. And minor arc क्या होगी, minor arc, an arc less than 1/2 of the whole arc of a circle is called a minor arc. देखो हाफ से अगर स्मॉल है तो उसे क्या कहेंगे, हाफ यहाँ होता है, हाफ से अगर स्मॉल आर्क है तो उसे क्या कहेंगे, माइनर आर्क। एंड अगर हाफ से ज़्यादा है, ग्रेटर देन इसे क्या कहेंगे हम, पी आर क्यू इज मेजर आर्क एंड पी क्यू माइनर आर्क, okay. Next term is semicircle. Semicircle, when PQ is a diameter, then both arcs are equal and each is called a semicircle. PQ, if PQ diameter है, okay, when PQ is a diameter, then both arcs are equal and each is called a semicircle. ध्यान से देखो, अगर PQ डायमीटर है, ये वाला पार्ट आर्क क्या होगी, इक्वल होगी, कौन से पार्ट के, सेकंड वाले पार्ट के, ये देखिए इस पार्ट के। तो हम इनको क्या कहेंगे, भाई मैंने पॉइंट लिया है R, ये लिया है T, पी आर क्यू आर्क इक्वल्स टू पी टी क्यू आर्क, ओके। एंड इसे क्या कहेंगे हम, सेमी सर्कल। नेक्स्ट टर्म इज सर्कमफ्रेंस। देखो, द होल आर्क ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस, या फिर यूं कहें कि द लेंथ ऑफ द सर्कल, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज circumference of the circle, and it's 2 pi r, okay. Next term is sector of a circle. Sector, the part of the plane region enclosed by an arc of a circle and its 2 bounding radii. An arc PQ, and a part of the plane region enclosed by an arc and 2 radii is called as sector of a circle, okay. अब टर्म आती है माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर, द पार्ट कंटेनिंग द माइनर आर्क। माइनर आर्क क्या होती है, जो हाफ से लेस हो वो आर्क क्या होगी, माइनर आर्क। तो जो पार्ट माइनर आर्क कंटेन कर रहा है उसे क्या कहेंगे हम, माइनर सेक्टर। पी ओ क्यू क्या हुआ यहाँ पर, ये वाला पार्ट माइनर सेक्टर, एंड ये वाला पोर्शन क्या हुआ, जो द पार्ट कंटेनिंग द मेजर आर्क,
the part containing the major arc, it's known as major sector. Okay, and sector, the part of the plane region enclosed by an arc of a circle and its two bounding radii. Okay, next term is segment of a circle. Segment, a chord of a circle, the part of the plane region enclosed by an arc of a circle and a chord of a circle, PQ and its arc. This is segment of a circle. Okay, या फिर यूँ कहें कि a chord of a circle divides its circular region into two parts. First part ये है and second ये वाला part. Okay, and same thing, the part of the circular region containing the minor arc, ये minor arc contain कर रहा है, then ये कौन सा segment हुआ? Minor segment. And PRQ ये major arc contain कर रहे हैं. Okay, the part containing the major arc is called a major segment. Clear है? Next point is concentric circle. Two or more circles are called concentric circles if and only if they have same center but different radii. यहाँ मैंने 3 circles draw किए हैं, same center है but different radius, 2 centimeter, 3 centimeter, 4 centimeter. Okay, then it's known as concentric circle. Two or more circle if and only if they have same center but different radii. Okay, then this is known as concentric circle. Next is equal circle and congruent circle. Two or more circles are called equal if and only if they have same radius, 3 centimeter in radius. Okay, then it's known as equal circle. And हमने ट्रायंगल्स में किया था कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं, चैप्टर्स ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, सेम शेप एंड सेम साइज, देन इट्स नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर. यहाँ हमने क्या किया है, सर्कल ड्रॉ किया है, दोनों की रेडियस सेम है, शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, तो इनको क्या कहेंगे हम? कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स. ओके, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 10.1 and this is fill in the blanks. First is the center of a circle lies in dash of the circle. The center of a circle lies in dash of the circle. Center, ये सर्कल है, सेंटर कहाँ लाई करता है? इंटीरियर या एक्सटीरियर? लाइज इनसाइड द सर्कल इज इंटीरियर. ओके, यहाँ क्या आएगा? इंटीरियर. नेक्स्ट second part is, second part, a point whose diameter, whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies in dash of the circle. Second part क्या कहता है? A point whose distance from the center of a circle is greater than its radius. ध्यान से देखना, सर्कल है, ये सेंटर एंड ये पॉइंट. ओके, इसने कहा है कि ग्रेटर देन इट्स रेडियस एंड लाइज. अगर कोई पॉइंट ओपी रेडियस है, रेडियस से सॉरी सेंटर से उसकी डिस्टेंस अगर ग्रेटर देन रेडियस है, देन वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा? आउटसाइड द सर्कल. अगर इनसाइड द सर्कल लाई करता तो ध्यान से देखो, यहाँ कोई पॉइंट होता तो वो डिस्टेंस क्या होती? मान लो ये पॉइंट ए है और ये बी है. ओके, अगर ओ ए डिस्टेंस ओपी से क्या है? लेस देन है, बट हमें कहा क्या गया है कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन रेडियस. ठीक है, देन द पॉइंट इज एक्सटीरियर, लाइज आउटसाइड द सर्कल. थर्ड पॉइंट इज the longest chord of a circle, the longest chord of a circle is a dash of the circle. ध्यान से देखो, longest chord कौन सी होगी? longest chord, ये आपके पास सर्कल है. ओके,
कोड क्या होती है? A line segment joining the 2 points of a circle. एंड सबसे लॉन्गेस्ट कोड बतानी है आपको. लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज डैश ऑफ द सर्कल. क्या कहेंगे उसे? लॉन्गेस्ट कोड वो होगी जो कहाँ से पास करेगी? सेंटर से. एंड जो सेंटर से जो कोड पास करती है उसे क्या कहते हैं? डायमीटर. ओके. नेक्स्ट इज एन आर्क इज डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर. ध्यान से समझना. एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर. ये आपके पास एक सर्कल है. ये ऊपर वाला पोर्शन एक बार रब कर देती हूँ. ध्यान से देखो. एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर. इस सर्कल डायमीटर के अगर एंड्स दिए गए हैं आपको पी क्यू, तो आप उस आर्क को क्या कहेंगे? डायमीटर क्या करता है? एक सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. और अगर आर्क आपकी इक्वल हैं तो क्या कहते हैं उन्हें? सेमी सर्कल. ओके. नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट पार्ट कहता है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. फर्स्ट में क्या कहा गया है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर. टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल. एनी पॉइंट ओ पी ओ क्यू. सर्कल पे कोई पॉइंट है, अगर सेंटर से और उस पॉइंट से अगर हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो क्या होगा? रेडियस होगा. ये ट्रू है या फॉल्स? ये देखिए OT, ये सभी क्या है? रेडियस है. तो ये क्या है? फर्स्ट वाला पार्ट क्या होगा? ट्रू. ओके. नेक्स्ट इज इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज ए मेजर आर्क. सॉरी, सेकंड है a circle has only finite number of equal chords. ध्यान से देखो. सर्कल, a circle has only finite number of equal chords. कोड क्या होती है? a line segment joining any 2 points of a circle. ये भी एक कोड है, ये भी एक कोड है. या फिर मैं ये ड्रॉ करूं, ये सभी क्या है? कोड है. ये सभी क्या कर रही है? अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स. ओके. तो क्या आप ये बोल सकते हो कि फाइनाइट नंबर ऑफ ए सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स का है ना? इक्वल कोड्स. बट फिर भी देखो ध्यान से, फाइनाइट कैसे हो सकती हैं? ये वाली कोड इसके इक्वल है या नहीं? अगर मैं सेम डिस्टेंस की कोड यहाँ भी बना सकती हूँ, ऐसे भी बना सकती हूँ, ये भी बना सकती हूँ. ध्यान से देखो, क्या फाइनाइट होंगी? ये देखिए, ये क्या हुआ? फॉल्स. थर्ड पार्ट इज इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज अ मेजर आर्क. देखो, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, अगर आप सर्कल को 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर रहे हो, ध्यान से देखो. फर्स्ट ये इक्वल आर्क्स में डिवाइड नहीं हुआ, बट सर्कल को अगर 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर रहे हैं, ये वाली आर्क इसके इक्वल है और इसके इक्वल है, देन इसने कहा है कि ईच इज ए मेजर आर्क. क्या सभी के सभी मेजर आर्क हैं? फॉल्स, बिल्कुल. अगर सर्कल ऐसे कुछ डिवाइड करता है तो आप इस आर्क को क्या बोलते हैं? मेजर आर्क. बट क्या सभी के सभी ईच मेजर आर्क है? ये तो माइनर आर्क है ना. ठीक है. ये वाला पार्ट क्या हुआ? फॉल्स. फोर्थ इज sector is the region between the chord and its corresponding arc. अब देखिए, हमने क्या पढ़ा था? सेक्टर क्या होते हैं? सेक्टर कौन सा रीजन होता है? इज द रीजन between its corresponding arcs and 2 radii. देन इसे क्या बोलेंगे हम? सेक्टर. एंड between the chord and its corresponding arc को क्या कहते हैं? सेगमेंट. Okay, then this is false. Okay,
एंड नेक्स्ट पार्ट इज अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। क्या कहा है कि सर्कल जो है क्या वो प्लेन फिगर है, ट्रू या फॉल्स? ध्यान से देखो, मैंने सर्कल ड्रॉ किया, क्या है ये? सर्कल इज अ प्लेन फिगर, ओके, एंड दिस पार्ट इज ट्रू। क्लियर है?